Okay. How to determine best ordering quantity considering discounted price at different ordering level. This is an application of deterministic inventory model. Okay. In my previous video, I have already discussed the derivation of economic order quantity. That is the model of EOQ. This is the formula by which you can determine the best ordering quantity for which the total cost will be minimum. The formula is this. This is the optimum ordering quantity or EOQ. D is the demand for the period, CO is the ordering cost or order, and CH is the carrying cost per unit of time. That I have already discussed. आज जब डिस्कस करें what is the difference, what is the speciality in this problem? In the EOQ model, the price was constant, not different. But in this case, the price is different. If you order different quantities, then the price will be different for the product. See, in this problem, if the ordering quantity lies between this level, that means 0 up to 100 units, then the price of the quantity, that the price of the product will be rupees 20 per unit. If the ordering quantity lies between 100 and 200, that means starting from the 100 units up to 200 levels, 200 units, then the price per unit will be rupees 18 per unit. इसी तरह से जितना ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो प्राइस विल बी डिक्रीज्ड. दिस इज द जनरल पॉलिसी फॉर एनी सेलिंग यूनिट. उसी तरह से अगर 200 यूनिट से ज़्यादा अगर ऑर्डर करते हो then the price per unit will be rupees 16. Now the question comes कि what units of the product should be ordered at a time so that the total cost will be minimum. How you will proceed? कैसे करना है? तो first you will determine the economic order quantity with the help of the price given for different price level. अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिस ऑर्डरिंग लेवल को सेटिस्फाई कर जाता है, देन दैट वुड बी द ऑर्डरिंग क्वांटिटी, दैट इज द बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी. बट इफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डज नॉट सेटिस्फाई दिस ऑर्डरिंग लेवल, तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ दैट लेवल यू विल ऑर्डर इन दिस वे. नाउ आई एम शोइंग हाउ विल सॉल्व इट. दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द गिवन प्रॉब्लम. The price level for different ordering quantity is given in the problem. The monthly demand for the product is 400 units. Ordering cost per unit order is 25 and the carrying cost or storage cost is 20% of the unit cost of the product. So this is the problem. You have to determine कितना करके ऑर्डर करोगे तो so that the total cost will be minimum. तो जैसा मैंने अभी अभी बोला, so what we will do, first we will try to find out the economic order quantity. If it satisfied the ordering level, then you will order that quantity. Otherwise you have to take decision differently. What decision you will take, that I will discuss. So first I am going to start the lowest price level. अगर 200 से अधिक ऑर्डर करते हैं तो प्राइस पर यूनिट विल बी ₹16. तो ये अगर होता है देन व्हाट विल बी द EOQ. तो ये मैंने यहाँ पर निकाले हैं. हाउ यू विल कैलकुलेट, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियो. यू कैन चेक इट अगेन, आई एम शोइंग इट हियर. Now this is the formula October 2DCO. CO means order quantity, D means demand for the period, and this is the carrying cost. The percentage is 20% and it is the percentage of quantity. That means 2 into 400 demand, which is the ordering quantity, and divided by cost per unit of the product is 16, and 16 is the price for this level. I am taking that first, and if you calculate, the economic order quantity will be 79 units. We know अगर इस यूनिट्स को ऑर्डर करते हो तो the total cost will be minimum. But in this case
तुमको ये प्राइस बेनिफिट, ये प्राइस मिलने के लिए यू हैव टू ऑर्डर एटलीस्ट 200 क्वांटिटीज। लेकिन तुम्हारा ये क्यों हो रहा है 79 मिनट्स? दैट इज नॉट परमिशिबल। You will not get, if you order 79 units, then you will not get this price. Then what will do? For this case, you have to order at least the minimum required quantity to get this price. That means for this case, your ordering quantity will be what? 200 units. This is the minimum number of. Is it clear? अगर 200 यूनिट ऑर्डर करते हो, then you will get the price per unit as ₹16। हाँ, लेकिन तुम्हारा ये क्यों निकाल रहा था 79 यूनिट्स? अगर 79 करके ऑर्डर करोगे तब तो तुमको वो प्राइस नहीं मिलेगा। दैट्स वाई यू हैव टू रिवाइज द ऑर्डरिंग क्वांटिटी एज द लोअर बाउंड ऑफ द ऑफर, दैट इज 200 यूनिट्स। दैट इज एटलीस्ट 200 यूनिट्स अगर ऑर्डर करते हो देन यू विल गेट दैट प्राइस। तो हम लोग मिनिमम यूनिट्स को ले रहे हैं। नाउ चेक फॉर द सेकेंड ऑर्डरिंग लेवल। यहाँ पर प्राइस कितना है? 80 रुपीज़। तो अगेन यू विल कैलकुलेट द EOQ considering the price of the product as ₹18 and check अगर वो EOQ अगर इस लेवल को सेटिस्फाई कर जाता है ऑर्डरिंग लेवल तो हम लोग EOQ को लेंगे, क्योंकि EOQ इज द बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी, उससे कॉस्ट सबसे कम निकलता है। लेकिन अगर वो नहीं होता तो क्या करेंगे आगे जाके मिलता है। देखो फॉर दिस Q2 तो उस ऑर्डरिंग लेवल के लिए 400 इज द डिमांड फॉर द पीरियड, इन दिस केस इट इज पर मंथ, एंड 25 इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑर्डर, and price in this level is ₹18, and that's why carrying cost is 18 into 0.2, 20%। कैलकुलेट करते हैं तो EOQ is 75 units, 75 units इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बट इस प्राइस को मिलने के लिए यू हैव टू ऑर्डर एट लीस्ट 100 यूनिट्स। तुमको 75 यूनिट से 75 यूनिट्स इसके बीच में आता नहीं है। 100 से अगर 200 का बीच में ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर लेकर अप टू 200, तो तुम्हारा प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट 18 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा यहाँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो जो है 75 यूनिट्स हो रहा है, तो इसलिए इसको सुधारना पड़ेगा। दैट्स वाई योर ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी 100 यूनिट्स टू गेट द प्राइस बेनिफिट, मीन्स प्राइस ऑफ ₹18 पर यूनिट। इस तरह से नाउ इस लेवल को हम लोग चेक करते हैं। दिस इज द फास्ट है। तो इस तरह यहाँ पर प्राइस क्या है 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो 100 तक अगर ऑर्डर करते हैं कुछ भी तो तुमको इस प्राइस मिलेगा। तो देखते हैं तो क्या हो रहा है EOQ। तो Q1 जो 400 डिमांड एंड दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑर्डर, और दिस इज द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट 20 इंटू 0.2, वी आर एट 70 यूनिट्स। तो ये क्या लेवल में आ रहे हैं? यस, इन दिस केस इस 0 से लेकर 100 के बीच में है ये 70 यूनिट्स। तो इसलिए इट इज़ बेटर टू ऑर्डर द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एज दिस प्राइस इज सेटिस्फाइड। यहाँ पर जब ये प्राइस सेटिस्फाई हो रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑर्डरिंग क्वांटिटी को 70 पर लेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो फॉर ईच प्राइस गिवन यू विल कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड चेक whether it satisfy the ordering condition। लेकिन अगर नहीं होता है तो लोअर बाउंड द मिनिमम यूनिट्स जो है उस प्राइस बेनिफिट मिलने के लिए उस पर हम लोग चले जाएंगे। इसी तरह से तीनों लेवल का फास्ट स्टेप हम लोग चेक करेंगे और उसी हिसाब से ऑर्डरिंग क्वांटिटी रिवाइज करेंगे। तो हमारा ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या हुआ? फॉर दिस ऑर्डरिंग Q1 ऑप्टिमम ऑर्डरिंग क्वांटिटी हो जाएगा 70 यूनिट्स, एंड फॉर दिस केस ऑर्डरिंग क्वांटिटी रिवाइज करके हो जाएगा 100 यूनिट्स, और फॉर दिस केस तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी हो जाएगा कितना? 200 यूनिट्स। तो अब सेकेंड स्टेज में वी हैव टू चेक द टोटल कॉस्ट फॉर दिस प्राइस। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ आ जाता है? दिस इज द टोटल कॉस्ट फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट फॉर द पीरियड 3 तरह का कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। 3 तरह का। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलता है? D इंटू सी, डी मीन्स डिमांड इंटू कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स D डिवाइडेड बाई Q ऑर्डरिंग क्वांटिटी, वो नंबर मिल गया इंटू CO। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? एवरेज इन्वेंट्री Q/2 इंटू CH, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम।
तो हम लोग देखते हैं सीरियली एक एक करके कि किसमें कितना कॉस्ट टोटल आ रहा है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। दिस इज द मटेरियल कॉस्ट, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड दिस इज कैरिंग कॉस्ट। तो तीनों क्वांटिटी पर हमने देखेंगे ऑर्डरिंग क्वांटिटी पर कि टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, और जिससे सबसे लोएस्ट कॉस्ट आएगा मैं उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट Q10 70 यूनिट्स अगर ऑर्डर करते तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा। तो दिस इज द total units required for the period 400 per unit cost is 20 rupees because this option for price per unit is 20 is material cost निकल गया plus this is the number of orders क्योंकि 70 करके ऑर्डर कर रहे हैं 400 divided by 70 is number of orders into 25 एक एक ऑर्डर का कॉस्ट 25 है दैट्स वाई मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल जाएगा प्लस ये कैरिंग कॉस्ट Q/2 ऑर्डर करते हैं 70 करके एवरेज inventory is 70 divided by 2 into 20 the material cost per unit into 20%. ये करते हैं तो टोटल कॉस्ट विल कम ₹8,283 इस ऑप्शन पर। इसी तरह से फिर सेकंड तो जहाँ पर मैंने ऑर्डर करते हैं 100 यूनिट्स करके, तो 100 यूनिट्स का ऑर्डर करते हैं तो टोटल मटेरियल कॉस्ट विल रिमेन सेम बिकॉज डिमांड इज सेम बट नॉट सेम बट material cost per unit will be decreased to 18 rupees. That's why this is the total material cost and ordering cost will be 400 divided by 100 एक एक बार करके ऑर्डर कर रहे हैं 100 करके number of orders into 25 and this is the carrying cost. The Q divided by 2 into price per unit is 18 into 0.20%, 7,480. You can check it. And third, the ordering quantity is 200 units. तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 400 इन दिस केस प्राइस पर यूनिट विल बी 16 इससे मल्टीप्लाई करते टोटल मटेरियल कॉस्ट प्लस 600 डिवाइडेड बाय 200 करके ऑर्डर कर रहे हैं दिस द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑर्डर प्लस कैरिंग कॉस्ट 200 इज ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड इज एवरेज इन्वेंट्री मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 16 इंटू 20%, तो ये टोटल कॉस्ट आ रहा है। तो तीनों में से विच वन इज द लोएस्ट कॉस्ट ये देखना पड़ेगा। तो देखो दिस कॉस्ट एंड दिस वन, तो तीनों में जो दिस इज द लोएस्ट, नो सॉरी दिस इज द लोएस्ट 6,770, दिस इज द लोएस्ट टोटल कॉस्ट दैट्स वाई वी शुड ऑर्डर 200 यूनिट्स एट ए टाइम एंड गेट द डिस्काउंट बेनिफिट। यहाँ पर टोटल द प्राइस पर यूनिट हो जाएगा कितना 16 रुपीज़। इसी तरह से तुम्हारा डिफरेंशियल प्राइस ब्रेकअप प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्यों तो हम लोग पहले से जानते थे बट इन दिस केस प्राइस तो सेम नहीं है क्योंकि इफ़ यू ऑर्डर मोर और हायर क्वांटिटी तो प्राइस डिक्रीज कर देता है। तो एट डिफरेंट प्राइस लेवल डिफरेंट ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज गिवन। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हर प्राइस पर हम लोग EOQ चेक करेंगे, अगर EOQ उस ऑर्डरिंग लेवल को सेटिस्फाई करता है then you will consider the ordering quantity as the EOQ quantity फर्स्ट स्टेज में। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है जबकि वो बाहर है रेंज का तो विल ऑर्डर एट द लोएस्ट क्वांटिटी, उस बेनिफिट्स को उस प्राइस को मिलने के लिए जो सबसे कम क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए मैं उसी को ऑर्डर करके देखूंगा, पहले को मैं ज़्यादा देखेंगे तो लोएस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेंगे। जैसा इस लेवल पर देखा गया इसका ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो है 100 से नीचे है, लेकिन 100 से नीचे जाएगा तो तुमको तो दिस प्राइस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू हैव टू ऑर्डर एटलीस्ट 100 और ऊपर में 200 तक, तब जाके मेरे को ये प्राइस बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए मैं लोएस्ट को सिलेंगे, जब 100 करके भी ऑर्डर करेंगे तो ये प्राइस मिल जाएगा। तो इस लेवल को मेरा ऑर्डरिंग क्वांटिटी हो जाएगा 100। और इसी तरह इसको भी चेक करेंगे तो देखेंगे जो EOQ है तो वो ये ऑर्डर को ये ऑर्डरिंग लेवल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि एटलीस्ट 200 यूनिट्स अगर ऑर्डर करते हैं तो मेरे को ये प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पर जो है थर्ड सिचुएशन में तो मेरा जो ऑर्डरिंग EOQ जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 79 यूनिट्स आए, तो 79 यूनिट्स अगर ऑर्डर करते हैं तब तो यू विल नॉट गेट दिस प्राइस, तो एटलीस्ट 200 ऑर्डर करेंगे तब जाके ये प्राइस मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ऑर्डरिंग क्वांटिटी मैं 200 लेके चलूँगा। ये तो फर्स्ट स्टेज में डिसाइड हुआ जो उन ऑर्डरिंग लेवल पर मैं कितना करके ऑर्डर करेंगे। जैसा यहाँ पर इसका लिए जो है मैं EOQ पर ऑर्डर करेंगे और यहाँ पर जो है 100 करके ऑर्डर करेंगे, रेस्ट जो रिक्वायर्ड
लेवल क्वांटिटी है इन दिस लेवल, और इस लेवल पर जो है ऑर्डरिंग क्वांटिटी मैं 200 लेकर चलेंगे। सेकेंड स्टेज में हर ऑर्डरिंग क्वांटिटी पर उस पीरियड का लिए टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा वो कैलकुलेट करना है, वही हमने किया। और उसके बाद जो लोएस्ट टोटल कॉस्ट रहेगा उस ऑप्शन पर जाएंगे, और उसका जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है दैट विल बी द डिसीजन, दैट विल बी द आंसर। इन दिस केस अगर मैं ये केवल 70 यूनिट्स करके ऑर्डर करते तो टोटल कॉस्ट हो जा रहा है इतना, अगर मैं 100 करके ऑर्डर करते तो टोटल कॉस्ट आ रहा है इतना फॉर द पीरियड, लेकिन 200 करके यूनिट करते ऑर्डर करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ रहा है दिस इज द लोएस्ट आउट ऑफ दिस थ्री, तो आई विल order, that means in this case your answer will be you should order 200 units at a time and the total cost for the period will be 6,770. Okay. If you have any doubt, please mention in the comment box and I will definitely give the answer. Thank you. Thank you.